Assalamu alaikum. Welcome to our talk about enabling the transformation of teaching profession. Recommendation of the United Nations Secretary General's high-level panel on the teaching profession, published 2024. This is the front page of that very report. We will be talking about supporting policies and teaching and learning, rights for education and decent work for teachers, diversity and transformation of the teaching profession, national policies and transformation of teaching profession, National Commission and transformation of the teaching profession, teacher management and information system and transformation of the teaching profession. First of all, supporting policies for teaching and learning. Number one, teachers require an enabling environment and holistic social support and advocate funding for education and lifelong learning. So टीचर्स को यकीनन एक enabling environment चाहिए है और मुकम्मल होलिस्टिक सोशल सपोर्ट चाहिए होती है, एडुकेट फंडिंग चाहिए होती है और उन्हें अपने आप को लाइफ लॉन्ग लर्निंग से डेवलप भी करना होता है. नंबर टू, गवर्नमेंट शुड डेवलप इकोनॉमिक एंड सोशल पॉलिसीज that support teaching and learning. The UNO asked the governments to develop economic and social policies that support the education, means teaching learning process. Number three, policies should ensure that parents and families have the time and capacity to support learners. Of course, the policies should be such that the parents have time, the families have time to support their children, and they do have capacity to support them also. Number four, policies ensure that learners have access to adequate nutrition and health care services. So, of course, the students, the learners need adequate nutrition and health care services. Number five, learning spaces are safe and inclusive, and learning institutions have adequate infrastructure and connectivity, and the teaching profession enjoys high status and support. The policy recommendations of UNO are that the learning spaces should be safe and inclusive. यानी हर तरह के लोगों के लिए वो जो है वो सेफ हो, हर तरह के लोगों के लिए वो कंड्यूसिव हो. लोग पीपल्स ऑफ डिफरेंट जेंडर्स, पीपल्स ऑफ हैविंग disabilities are the peoples who are differently able. और जो लर्निंग इंस्टीट्यूशंस हैं, जो स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो, उनके पास नेट ठीक हो एंड टीचिंग प्रोफेशन को एक अच्छा स्टेटस हो सोसाइटी में और उन्हें सपोर्ट मुयसर हो. The B part is rights for education and decent work for teachers. Of course, UNO recommends that the government should fully implement enabling rights for education and decent work for teachers in line with international standards. So teachers के लिए जो एक अपने आप को डेवलप करने का राइट है और डिसेंट वर्क जो है उसका राइट है, यानी टीचर्स के वर्क को जो है वो डिसेंट होना चाहिए, सोसाइटी को उनके अपने आप को डिसेंट वे से उन्हें ट्रीट करना है जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हो और जिसमें ये चार चीज़ें शामिल हों. नंबर वन, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग, यानी टीचर्स अपनी एसोसिएशन बना सकें और कलेक्टिवली बार्गेन कर सकें. नंबर टू, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. नंबर थ्री, freedom of thought, and number four, academic freedom. Of course, they need all these.
Point C is diversity and transformation of the teaching profession. Number one, education goals should aim to promote varied and well-supported learning pathways for success in life. सो एजुकेशन का मकसद है कि वो डिफरेंट जो है डिफरेंट पाथवेज पर चलने वाले स्टूडेंट्स को सपोर्ट करे, सबको एक ही रास्ते पर चलाने की कोशिश न करे. नंबर टू, learning should be based on principles of cooperation and solidarity, not exclusion and individualistic competition. जो लर्निंग बेस करे तावन पर, हमदर्दी पर, ना कि दूसरे ग्रुपों को, लोगों को पिछाड़ने पर और एक फर्द का मुकाबला दूसरों से करने के लिए. ये जो विनिंग माइंडसेट है, इस पर भी हमें सोचना होगा. हमें तालिब इल्मों को सिखाना होगा कि उन्होंने इकट्ठे जीतना है, इंडिविजुअली जीतने की बजाय. एंड शुड फॉस्टर रिलेशनशिप्स, एम्पैथी, कंपैशन, एथिक्स, एनवायरमेंटल एंड सोशल कॉन्शियसनेस. सो उनमें हमने जो चीज़ें पक्की करनी है अपने जो स्टूडेंट्स में, वो रिलेशनशिप्स हैं, जो उन्हें रिलेशनशिप मेंटेन करना आना चाहिए, उन्हें रिलेशन बनाना और उसको चलाना आना चाहिए. उनमें एम्पैथी हो, यानी दे शुड बी एबल टू पुट अदर्स शूज, दूसरे की जगह पर अपने आप को रख के सोच सकें. कंपैशन, उनमें हमदर्दी हो, वो अखलाकियात पर चलने वाले हो, और जो और उन्हें अच्छा इन्वायरमेंट मुयस्सर हो, और वो सोशली कॉन्शियस हो, यानी दूसरों के दुख दर्द का उन्हें एहसास हो, पता हो वो क्या कर रहे हैं. नो मैटर विच लर्निंग पाथवे इज टेकन, यानी कोई भी लर्निंग पाथवे वो अडॉप्ट करें, वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने, लेकिन ये बुनियादी चीज़ें उनमें होनी चाहिए. नंबर थ्री, टीचर शुड बी एबल टू सपोर्ट मल्टीपल पाथवेज टू लाइफ सक्सेस. यानी अगर हमने तालिब इल्मों में कुछ कैपेसिटीज पैदा करनी है, तो टीचर्स को वो कैपेसिटीज पैदा करनी आनी चाहिए, तभी स्टूडेंट्स में पैदा हो सकेंगी. तो वो मल्टीपल जो कामयाबी के पाथवेज हैं लाइफ में, उनको सपोर्ट करने के काबिल हों टीचर्स. एंड शुड नॉट बी रिजिडली बाउंड टू असेसमेंट्स एंड pedagogies that fulfill narrow criteria for learning success. यानी जो टीचर है वो बिल्कुल नैरो माइंडेड ना हो कि ये एक डेफिनेशन आएगी तो तभी बच्चा कामयाब होगा, इसके बगैर वो कुछ भी नहीं है. यानी उसे अपनी असेसमेंट को, अपनी टीचिंग स्ट्रेटेजीज को ब्रॉडर करना है, ताकि तालिब इल्मों की होलिस्टिक डेवलपमेंट या उनकी पर्सनैलिटी में जो एक फितरत ने एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखा है, उसी में वो अपने आप को मनवा सके, एक्सेल कर सके, उसी में वो अपनी टीम को लीड कर सकें. डी इज नेशनल पॉलिसीज एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द टीचिंग प्रोफेशन. नंबर वन, ऑल गवर्नमेंट्स शुड अडॉप्ट, इंप्लीमेंट एंड रेगुलरली रिवाइज एज नीडेड. रेगुलरली रिवाइज एज नीडेड. तमाम गवर्नमेंट्स को अडॉप्ट करना है, इंप्लीमेंट करना है और रेगुलरली रिवाइज करना है जब भी ज़रूरत पड़े. क्या भला? कॉम्प्रिहेंसिव एंड होलिस्टिक नेशनल टीचर पॉलिसीज. क्या अडॉप्ट करना है, क्या इंप्लीमेंट करना है, किसको रिवाइज करना है? कॉम्प्रिहेंसिव और होलिस्टिक नेशनल टीचर पॉलिसीज को, जो कि अलाइंड विद नेशनल प्रायोरिटीज होंगी, ओवरऑल एजुकेशन स्ट्रेटेजी से अलाइन होंगी और प्लान से अलाइन होंगी. और ये अलाइनमेंट होगी कैसे? थ्रू सोशल डायलॉग विद रिप्रेजेंटेटिव टीचर्स और ऑर्गेनाइजेशंस. यानी सोशल डायलॉग करेंगे हम टीचर ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव के साथ. याद रहे कि ये प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है. एंड इन कंसल्टेशन विद अदर स्टेक होल्डर्स, जो टीचिंग के अदर स्टेक होल्डर्स हैं, गवर्नमेंट हैं, लोकल जो है वो एलीट है, और लोकल जो पेरेंट्स हैं, सबके साथ मिलके हमने ये पॉलिसीज बनानी भी है, रिवाइज भी करनी है. नंबर टू, नेशनल टीचर पॉलिसीज शुड कवर अट्रैक्शन टू प्रोफेशन एंड रिक्रूटमेंट.
सो नेशनल टीचर पॉलिसी जो है वो कवर करेंगी कि कैसे हम लोगों को टीचिंग प्रोफेशन की तरफ अट्रैक्ट करें, उन्हें रिक्रूट करें, इनिशियल ट्रेनिंग दें, उनकी डिप्लॉयमेंट यानी पोस्टिंग करें, उनको कैरियर के पाथवेज कैसे दें, इन सर्विस ट्रेनिंग और प्रोफेशनल सपोर्ट्स किस तरह से हम उनको देंगे, एम्प्लॉयमेंट के रूल्स वगैरह क्या होंगे, वर्किंग कंडीशंस क्या होंगी, इंक्लूडिंग रिटेंशन उनकी हम कैसे करेंगे, यानी कैसे हम उनको कंटिन्यूसली एक डेवलपमेंट का पाथ देंगे ताकि वो इस प्रोफेशन को छोड़कर दूसरों को ज़्यादा लिक्रेटिव समझकर उधर ना जाएं, रिवार्ड क्या होंगे, रिकॉग्निशन कैसे मिलेगी, और रेम्यूनरेशन उन्हें हम जो पे करेंगे डेट शुड बी कमेंसरेट विद द क्वालिफिकेशंस। सेकंड पॉइंट को दोबारा देखते हैं। National teacher policies should cover attraction to the profession and recruitment, initial training, deployment, career pathways, in-service training, and professional support, employment and working conditions, including retention, reward, recognition, and remuneration commensurate with qualifications. Number 3. Now we come to the number 3. National policies should also address teaching standards. जो नेशनल पॉलिसीज में शामिल होंगे, टीचिंग के स्टैंडर्ड्स, किन स्टैंडर्ड्स पर टीचिंग होगी, गवर्नेंस एड्रेस होगी, मैनेजमेंट एड्रेस होगी, वेल बीइंग ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स एड्रेस होगी, असेसमेंट ऑफ टीचर्स और टीचर्स को असेस कैसे करेंगे और क्वालिटी को मॉनिटर कैसे किया जाएगा, एंड स्ट्रेटेजीज फॉर इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी क्या होगी, और इंक्लूडिंग पॉलिसीज एम्स एट जेंडर इक्वालिटी, यानी इस पॉलिसीज में जो जेंडर इक्वालिटी की पॉलिसी हैं वो भी इसका पार्ट होंगी, सच एज अट्रैक्टिंग मेल टीचर्स एट अर्ली चाइल्डहुड एंड प्राइमरी लेवल्स, क्योंकि अर्ली चाइल्डहुड या प्राइमरी लेवल पर मेल टीचर कम है, और जब भी कोई जेंडर किसी लेवल पर लेस रिप्रेजेंटेटिव होगी, इट इज ए पॉइंट टू बी कंसिडर्ड, और इंश्योरिंग करियर डेवलपमेंट एंड अपवर्ड मोबिलिटी फॉर फीमेल टीचर्स। हायर एजुकेशन में जाएं तो फीमेल टीचर्स की तादाद कम हो जाती है, हम उसे कैसे बढ़ा सकते हैं, एंड अट्रैक्टिंग वुमेन इनटू साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, स्टेम डिसिप्लिन। सो हमने ज़्यादा औरतों को अट्रैक्ट करना है साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इंजीनियरिंग में, मैथमेटिक्स में और स्टेम डिसिप्लिन के अंदर। अब हम पॉइंट 3 को दोबारा देखते हैं। National policies should also address teaching standards, governance, management, well-being, assessment of teachers and monitoring of quality, and strategies for inclusion and diversity, including policies aimed at gender equality such as attracting male teachers at the early childhood and primary levels, ensuring career development and upward mobility for female teachers, and attracting women into science, technology, engineering, and mathematics, STEM disciplines. Number 4. Such policies should be based on analysis of current research and disaggregated data on teachers. यानी ये जो पॉलिसीज हैं इनकी बेस बनेगी रिसर्च और डिसएग्रीगेटेड डाटा ऑन टीचर्स, यानी टीचर्स का डाटा सेपरेट करके एजुकेशन को ओवरऑल देखेंगे। तो जब आप मैक्रो लेवल पर प्लानिंग कर रहे होते हैं तो उसमें माइक्रो लेवल के कुछ इंडिकेटर सफ़र कर सकते हैं, इसलिए टीचर्स की वेलबीइंग सबसे अहम है, इसी के थ्रू हम स्टूडेंट की वेलबीइंग को इंश्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी नेशनल कमीशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टीचिंग प्रोफेशन। नंबर 1, गवर्नमेंट शुड एस्टेब्लिश नेशनल कमीशंस। हुकूमतों को यूएनओ इज सेइंग दैट गवर्नमेंट्स को नेशनल कमीशन बनाने चाहिए और दूसरे मैकेनिज्म बनाने चाहिए विच शुड इंक्लूड रेलिवेंट फाइनेंशियल अथॉरिटीज, जिसमें फाइनेंसेस की अथॉरिटीज भी शामिल होंगी और रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ टीचर ऑर्गेनाइजेशन भी शामिल होंगे और दूसरे रेलिवेंट स्टेक होल्डर भी शामिल होंगे टू असेस एंड टैकल शॉर्टेज ऑफ एडुकेटली ट्रेन टीचर्स, क्योंकि एडुकेटली
ट्रेन टीचर की शार्टेज को एड्रेस किया जा सके, ये बड़ा अहम पॉइंट है, क्योंकि इसके सफ़र करने वाला तालिब इल्म है। इसलिए हो सकता है गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ इससे इतनी सेंसिटाइज ना हो जितनी उन्हें होना चाहिए। दैट इज़ वाई एट वर्ल्ड लेवल इट इज़ बीइंग सेंसिटाइज। पॉइंट 1 को दोबारा देखते हैं। Government should establish national commissions and other mechanisms which should include relevant financial authorities, representatives of teachers, organizations, and other relevant stakeholders to assess and tackle a shortage of adequately trained teachers. Number 2. Such commissions and mechanisms should address labor market analysis, recruitment, teacher migration, attrition and retention, compensation, status and rights, work roles, well-being, equity, including the ratio of qualified teachers to students, equality and infrastructure. तो इस तरह के कमीशन में जो चीज़ें आनी चाहिए वो लेबर मार्केट का एनालिसिस है, रिक्रूटमेंट कैसे होती है इसका एनालिसिस है, टीचर माइग्रेशन क्यों हो रही है, एट्रिशन क्यों हो रही है। भाई टीचर हमने 100 रखा, कुछ अरसे बाद वो 70-80 रह जाते हैं, बाकी छोड़ जाते हैं, बाकी चले जाते हैं, तो इसको हमने देखना है। और रिटेंशन टीचर्स की, इसको हमने देखना है। कंपनसेशन के मामलात को देखना है कि उनकी पे और बाकी जो उनकी मराहत हैं वो कैसे है, स्टेटस उनको क्या मिल रहा है, राइट्स उनको क्या मिलते हैं, वर्कलोड उन पर कितना है, उनकी बहबूद का, वेलबीइंग का कितना ख्याल रखा जा रहा है, और किस तरह इक्विटी यानी उनकी ज़रूरत के मुताबिक उनको फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। ख़ास तौर पर देखें अगर देहाती इलाके में जो टीचर्स कम हों तो कई की क्लास से एक टीचर के पास आ जाती हैं, तो यहाँ भी इसको देखना है। इक्वालिटी, बराबरी को, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी देखना है। ये काम करेगा नेशनल कमीशन और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टीचिंग प्रोफेशन ऐसे ही मुमकिन है। एफ पॉइंट है जी, टीचर मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द टीचिंग प्रोफेशन। ऑफ कोर्स टीचर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है उसका बनाना ज़रूरी है। Government should develop and maintain teacher management and information system aligned to education management information system in order to strategically predict and manage demand for teachers। यानी कोई सिस्टम होगा, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम होगा, तभी हमें पता चलेगा कि हमें कहाँ पर किस लेवल के किस सब्जेक्ट में किस महारत के टीचर्स की ज़रूरत है, और फिर उसके बाद क्या करना है। ट्रैक देयर प्रोफेशनलाइजेशन एंड करियर डेवलपमेंट। इस बात का ख्याल रखना कि उन्होंने अपने आप को प्रोफेशनली कितना डेवलप किया। करियर में जो प्राइमरी टीचर हमने भर्ती किया अब वो कहाँ पहुँचा है। अगर वो सारे के सारे वहीं बैठे हैं तो इसका मतलब है कि उनको कोई जो है वो आगे प्रमोशन की लेडर अवेलेबल नहीं है। वो किस स्केल में गए हैं, उन्होंने प्रोफेशनली अपने आप को कितना डेवलप किया है। And ensure equitable development of qualified teacher across all regions। जितनी जो कंट्रीज या स्टेट की रीजन है उन सब में इक्वली टीचर्स को मौके भी अवेलेबल हों डेवलपमेंट के, प्रोफेशनल डेवलपमेंट के, और डेवलपमेंट कर भी रहे हो भी रहे हों। ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन, ऑल सेक्टर्स ऑफ सोसाइटी स्पेशली मार्जिनलाइज्ड एंड मोस्ट वल्नरेबल। सो जो ये तमाम सेक्टर्स ऑफ सोसाइटी के लिए हो, स्पेशली जो गरीब हैं, जो वल्नरेबल हैं उनके लिए। तो ओवरऑल जो इस स्लाइड में एक थॉट पेश की गई है वो ये कि टीचर का मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम हो जिसमें पता चला सके कहाँ कितने टीचर चाहिए, और उनकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट पर भी एक नज़र रखी जाए, और तमाम स्कूलों में इक्विटी की बना पर, इक्वलिटी की बना पर टीचर्स मुयस्सर भी हों और वो काम भी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और साथ साथ मतलूबा नताइज भी मिल रहे हों। हमने बातें की, वी टॉक्ड अबाउट एक्चुअली सपोर्टिंग पॉलिसीज फॉर टीचिंग एंड लर्निंग, राइट्स फॉर एजुकेशन एंड डिसेंट वर्क फॉर टीचर्स, diversity and transformation of the teaching profession, national policies and transformation of the teaching profession, national commission and transformation of the teaching profession,
टीचर मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द टीचिंग प्रोफेशन। ओवरऑल हमने टीचिंग प्रोफेशन की ट्रांसफॉर्मेशन पर बात की है, जिसमें सपोर्टिंग पॉलिसीज़ की बात है, जिसमें टीचर के लिए डिसेंट वर्क की बात की गई है, जिसमें डाइवर्सिटी की बात की गई है, नेशनल पॉलिसीज़ की बात की गई है, कमीशन की बात की गई है, और टीचर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात की है। थैंक यू वेरी मच। दिस इज़ फॉर ऑल, दिस इज़ ऑल फॉर दिस टाइम। सी यू अगेन।